السلام علیکم۔ ناول رمز جنون بائے نور آصف۔ زاران ابریش کو بازو کے حلقے میں لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ 4تھ فلور پر آیا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ابریش نے اس کے سینے سے سر اٹھائے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز سے اس سے کچھ کہا تھا۔ زاران اس کی بڑبڑاہٹ اگنور کر گیا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگی ابریش کا وجود کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کی مدہوش کن نشیلی آواز اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل مدہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زاران اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زاران نے ابریش کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ رخ پلٹے اس نے زاران کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے مارو گی نہیں۔ ابریش اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے کھسکتی بیڈ کراؤن کے ساتھ جا لگی۔ اب وہ سہمی ہوئی ہرنے کی مانند اپنی مدہوش کن نگاہوں سے بنا پلک کے جھپکائے زاران خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو خون اشام نگاہوں سے گھورتے اس کے نازک دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ابریش نے زور سے آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے مسٹر خانزادہ۔ ابریش نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زاران کی نظر بے اختیار اس کے نازک وجود پر اٹھی تھی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے زعیم اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ زاران نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ میرا اندازہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھا۔ تم اچکن گوار وحشی ہو۔ مجھے دھکا دیا ہے، تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ زاران کے دیوار پر مکہ مارنے پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی، اس لیے زاران کی طرف مدہوش کن نگاہوں سے دیکھتے اسے بھی کے لہجے میں جتایا۔ تم ترس کھانے کی بات کر رہی ہو؟ میرا دل کر رہا ہے تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ زاران اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک گھٹنا اس کے ایک طرف رکھتے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنے وحشی پن سے اچھی طرح روشناس کروا دوں، تمہیں بھی پتہ چلے جب ایک مرد وحشت اور اپنے گوار پن پر رہتا ہے تو تم جیسی نازک لڑکی کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابریش کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر زاران نے اسے چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا ہی تھا کہ ابریش اسے شرٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسے ابریش سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ اس پر آ گرا تھا۔ اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں چھپ گیا تھا۔ زاران جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھا، مگر ابریش اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر چکی تھی۔ ابریش کی اتنی نزدیکی اس کے اوسان خطا کر چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں وہ الجھا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک سے زاران کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہوئے تھے۔
अब्रिश की आंखों की मदहोशी और सुर्खी जैसे ज़ारान खानज़ादा की आंखों की सुर्खी का हिस्सा बनी थी। इसके दिल की धड़कनें तक ज़ारान खानज़ादा के सीने का हिस्सा बनती, इसे खुद में धड़कती महसूस हो रही थी। ज़ारान ने खुमार भरी आंखों से इसे देखा। क्या चाहती हो? ज़ारान की आवाज़ भारी हुई थी। ज़ारान के लब अब्रिश के लबों से टकराने को बेकरार हुए थे। दोनों की सांसें तेज होती, एक दूसरे की सांसों में उलझी थी। तुम्हें चाहती हूँ। अब्रिश की नर्म आवाज़ पर ज़ारान की मदहोश कुन आंखों में बेयकीनी की लहरें उभरी। क्या कहा तुमने? ज़ारान ने बेयकीन से बोलते अब्रिश के बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं। अब्रिश ने साइड पलटते ज़ारान को बेड पर धक्का दिया था। ज़ारान मुस्कुराते हुए बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटे नाजुक हसीना की बेबाक हरकतें देखने लगा, जो आज इसे मदहोश कर रही थी। अब्रिश इसके सीने पर दोनों हाथ रखते इसके चेहरे के करीब हुई। ज़ारान की शर्ट के बटन के साथ खेलते ज़ारान को देखा, जो इसे ही सुर्ख बोझल निगाहों से देख रहा था। मैं अब्रिश पाशा इकरार करती हूँ, मैं मिस्टर खानज़ादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अब्रिश ने नज़रें झुकाई, मुस्कुराते हुए कहा। तो ज़ारान खानज़ादा के लब गहरा मुस्कुराए थे। लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अब्रिश की आंखें नम हुई। क्यों नहीं कर सकते? ज़ारान ने तमानियत से मुस्कुराते हुए मासूमियत से पूछा। क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। अब्रिश ने रूहान से होते कहा। लेकिन मैंने कब तुम पर गुस्सा किया? ज़ारान के मासूमियत भरे सवाल पर गहरे नशे में भी अब्रिश की आंखें हैरत की ज़्यादती से फटने की हद तक खुल गईं। इन आंखों में हैरत के साथ शिकवा भी था, जिसे देखते ज़ारान की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये पूछो, तुमने कब मुझ पर गुस्सा नहीं किया? अब्रिश ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। कब नहीं किया? ज़ारान ने नरमी से इसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरते इसकी नरमाहटें महसूस की। ऐसा कोई लम्हा मुझे याद ही नहीं जब तुमने मुझ पर गुस्सा ना किया हो। अब्रिश की शहद रंग आंखों में गहरे शिकवे पनाह थे। मैंने प्यार का इजहार भी तो किया था। ज़ारान इसकी आंखों की नमी में छुपे शिकवे और नाराज़गी को बगौर देखते बोला। वो इजहार नहीं था, उम्र कैद थी जो तुम मुझे सुना रहे थे। अब्रिश ज़ारान के सीने पर सर रखकर अब आंखें मूंद चुकी थी। मैं तुम्हें अपनी बाहों में उम्र भर के लिए ही कैद रखना चाहता हूँ। क्या तुम मोहब्बत में मेरी पनाहों की उम्र कैद कबूल नहीं कर सकती? ज़ारान के भारी लहजे में किए गए सवाल पर अब्रिश ने सीने से सर उठाकर इसे देखा। अब्रिश की
मदहोश कुन निगाहों को देखते ज़ारान खानज़ादा की आंखें मज़ीद खुमार आलूद हुई। पूरे बदन में स्पार्क सा महसूस हुआ। ज़ारान खानज़ादा के जज्बातों में तूफ़ान उमड़ आया था, जैसे खुद पर कंट्रोल ख़त्म हुआ था। वो बेख्तियारी में इसके होंठों की तरफ अपना अंगूठा बढ़ाते नरमी से सहलाने लगा। तुम मुझे शादी के बाद मारोगे? अब्रिश ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े अपनी तरफ खींचते सवाल दागा। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? ज़ारान ने मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल किया, साथ में हाथ बढ़ाकर इसका साइड जूड़ा खोल दिया था। अब्रिश के सिल्की बाल इसकी कमर और चेहरे के तरफ में बिखरे। ज़ारान ने बहुत नरमी से इसके बाल इसके कान के पीछे अड़से। क्योंकि तुमने बाबर को भी मारा था। अब्रिश ने इसे इसका जालिमाना एक्ट याद करवाया, जिसके बायस वो इससे कितना डर गई थी। इसे तो इसलिए मारा था क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की थी। ज़ारान ने इसके कान के अवीज़े को अब नरमी से छेड़ा। मैं गलती करूँगी तो मुझे भी तो मारोगे? अब्रिश भीगे लहजे में बोलते अपनी बात पर कायम थी। तुमने आज कितनी बड़ी गलती की। मैंने तो तुम्हें नहीं मारा। ज़ारान ने इसकी सुर्ख मदहोश को आंखों में झांकते अपना लब दांतों तले दबाया। वो अपनी मासूमियत, अपनी अदाओं से इसका दिल धड़काते इसे अपना मज़ीद दीवाना बना रही थी। कौन सी गलती की मैंने? अब्रिश ने मासूमियत से पूछते अपनी आंखें झपकते हुए सर को दाएं बाएं झटका दिया। इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। ज़ारान की नज़र इसकी साड़ी के पल्लू से नज़र आते इसके ब्लाउज़ की तरफ उठी, जिसकी जदीद तराश व खराश और बेहद फिटिंग में इसकी रोनाइयाँ पूरे जोबन पर थीं। ज़ारान का चेहरा यकदम लहू छलकाने लगा। सारा खुमार भग से उड़ा था। ज़ईम की आंखें याद आईं, जिनमें सिर्फ अब्रिश के लिए हवस थी। ज़ारान ने इसके बालों को पीछे से अपनी गिरफ्त में लेते इसका चेहरा अपने रूबरू किया। कैसे कर सकती हो अब्रिश तुम ये? कैसे तुम इस पार्टी में एक घटिया लिबास पहन कर आ सकती हो? क्या कहा था तुमसे मैंने कि मेरी इज्जत हो? तुमने मेरी किसी बात का मान नहीं रखा। तुम ज़ईम के साथ इस पार्टी में चली आई और तुमने ड्रिंक भी की। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो। ज़ारान खानज़ादा इसका चेहरा अपने रूबरू करते दहाड़ा था। कैसी लगी आपको वीडियो? तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी ज़ारान एंड अब्रिश के सीन्स। जो भी ज़ारान एंड अब्रिश के फैंस हैं यकीनन उन्होंने एंजॉय किया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।